सारे एचआर की प्रैक्टिसेस, सारे एचआर के जो फंक्शंस हैं वो एचआर बिजनेस पार्टनर ने ड्राइव करने। व्हेन यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट एनीथिंग particularly, could be a reason of pressure for someone, be very neutral in your tone. Understand your current business priorities, know your current business trends, know your current business global effectiveness. किसी भी ऑपरेशनल मैनेजर ने कहा कि इसका इतना रेस लगा दो, इसको आउट ऑफ वे बोनस दे दो, you should be able to ask questions. Develop that relationship with the person that you can ask question. क्यों देना है? What value he or she is adding in comparison to this. So let's start with understanding where do you stand right now in terms of understanding and implementing HR. What is the first step? Compliance. If somebody is working at the level of compliance in HR, what does this mean? Follow the policies, okay. So being HR business partner, we are standing at compliance part. That means we are paying attention to some basic stuff like attendance management, labor laws, probably file management, preparing agreements, जैसे आपने अभी कहा. So we are doing all important stuff of HR, but at the level of compliance, जहाँ पे company law suit के अंडर ना आ जाए. ठीक है, बेसिक फाइल वर्क एंड एवरीथिंग. सो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि चारों स्टेप्स क्या हैं. देन यू हैव टू टेल मी, एनालाइज एंड टेल मी कि आप किस स्टेप पे हैं. सो सेकंड स्टेप इज solution oriented. That means you are working on the orthodox approach of HR, but you have a mindset of providing solution. So let's say somebody says that at compliance part I am taking care of attendance. So at solution oriented part approach, you are basically providing solution around making attendance system efficient or resolving problems around attendance system. If at compliance part you are taking care of the labor laws and preparing agreements, at solution oriented part you are taking care of how to make the profile or the file of an employee with the proper manner, with all of its checklist, its core requirements and everything. So orthodox से एक step आगे, you are adding your own value, right? And third is strategic. What does this mean? What kind of level of HR it is? जहाँ पे HR प्रोफेशनल होता है, CEO और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग्स और बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से काम कर रहा है. Initiative strategies and implement them. Yeah, who is saying what? Okay. Making strategies and implement that strategies. Okay. Around HR, right? So you are getting business strategy, you are preparing HR strategy around it, and then you are serving the business. इसमें आप ये भी ले सकते हैं that you are paying attention to employee engagement part, you are paying attention to diversity and inclusion, you are getting some learning and development, you are getting some surveys done to know how employees feel, and probably or not sharing that data with management to take right actions. I'm saying probably because that's the best step. So if you are at the final step or final level of that, that is, so that means you are not taking instructions from your CEO that this is going to be business strategy and devising HR strategy, but you are sitting in the board meeting around the table with all stakeholders, CEO, CHRO, CFO, all the board members are sitting right there and discussing what to do next. And on behalf of HR, you are telling कि आप अभी जिस तरह पोस्ट कोविड सिचुएशन से निकले हैं और आपकी XYZ प्रोडक्ट है, तो मार्केट में ये सिचुएशन है, ये स्टैट्स हैं, ये डैशबोर्ड ये कहता है. सो लेट्स थिंक अबाउट दिस. अब you are driving the business, you are true HR business partner when you are part of the business and you are adding value. So that means now at the previous step, you are not only getting the service done, you are taking action item out of it, you are getting the right initiatives approved with the consent of your CEO,
you have the right budget assigned to HR initiatives, and you are making the compliance of those initiatives. Now you are making sure कि अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये थी कि सेल जो है वो 16% बढ़ानी थी, तो सेल 16% बढ़े. सारे HR की प्रैक्टिसेस, सारे HR के जो फंक्शंस हैं वो HR बिजनेस पार्टनर ने ड्राइव करने हैं. ठीक है. Now analyze in your situation, where do you think you stand? अगर कोई क्वेश्चन है क्लैरिटी फर्दर के लिए तो आई कैन सर्टनली टॉक अबाउट इट. Between point 2 and 3. Between point 2 and 3. point 2 and 3. Yes. Okay. So solution focused ये होता है that you are adding value to whatever you are doing, but you are not a strategic thinker. Let's say attendance management system. You are thinking about making attendance system more efficient, but as strategic HR business partner, you would think the other side of it, the entire business side of it. Means you will be thinking कि क्या attendance HR को manage भी करनी चाहिए कि नहीं. ठीक है. आपने सिर्फ यहाँ पे इस अप्रोच में अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छा कर लिया, ऑटोमेट कर लिया. पहले में आपका मैनुअल अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम था, दूसरे में आपने उसको बेहतर करके एफिशिएंट करके लेट से कोई सिस्टम खरीद लिया मार्केट से या बनवा लिया अपने डेवलपर से. तीसरे स्टेप पे आपने स्ट्रेटेजिकली सोचा दैट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ टेकिंग सो मच ऑफ HR's टाइम एंड व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट. क्या ये HR का पार्ट भी है कि नहीं. Did you realize lately in like last 5 to 10 years, people have realized it a lot, professionals, that attendance management system should never be part of HR. Why? Because you are my operational manager. If I have to take leave, how third person as an HR can approve or disapprove that? You know the target, you know the challenges of mine. I am telling you my side of story. Only we are coordinating and my approval is going to this HR. So as HR business partner, आपने सोचा कि this is not adding any value to business. We need to define the process, we need to break the status quo, and we need to bring the efficiency to make it more productive for everyone. Operational manager और HR के दरमियान, and when I'm calling operational manager throughout the session, I means is sales का manager, marketing का manager, IT का manager, anyone who is working on the main production line, right? In whichsoever industry you serve. So HR और operational manager के दरमियान हमारे हमेशा जो struggle रही है, why they can never be good friends, why can they never be good buddies to eat on one table? Because of these kind of challenges. For nothing ki power struggle. This is my area, this is my area. So we have to be very vigilant that which area should be with which business partner so we all can add value eventually, rather just going into power struggle. So ये attendance management is the bright example जहाँ पे पहले ये purely HR का काम था. Now it is not HR's task anymore. Any other question on this? Yes. As here you are developing a policy. ठीक है. पॉलिसी से मुराद ये है कि कोई भी पॉलिसी ले लें, ऑफिस आवर्स पॉलिसी, and you are making sure that everybody is coming at the same time, and you are making sure that everybody is leaving at 5 p.m. as advised and written in that black and white, right? So यहाँ पे आप सिर्फ वो compliance का डंडा जिसे कहते हैं ना, आप वो लेके रिसोर्सेज के पीछे हैं that आप 9 बजे क्यों नहीं आए, आपकी सैलरी कटेगी, आप 5 बजे से पहले क्यों गए. ठीक है. कंप्लाइंस में आप ये कर रहे हैं. सोल्यूशन फोकस्ड में आप ये सोच रहे हैं कि how I can make this process more vigilant, so I don't need to run after every time to see if somebody is coming or not. पहले लिटरली जहाँ अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता था उसके सामने वाला कमरा HR को दिया जाता था, so you can keep an eye on the system all the times.
ठीक है। सो थोड़ी सी एफिशिएंसी लाने की कोशिश की जा रही है सिस्टम में, उसको थोड़ा सिस्टमेटिक बनाया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट्स निकल रही हैं। स्ट्रेटजी में आप ये सोच रहे हैं, अब जब मैं ये आपको बता रही हूँ 9 to 6 5 वाली एग्जांपल, तो स्ट्रेटजी में आप ये सोच रहे हैं कि डू आई नीड टू पुश पीपल ऑन दिस साइड, व्हाट वुड बी माई स्ट्रेटजी इन मेकिंग कंप्लाइंस ऑफ इट। क्या मुझे ऑपरेशनल मैनेजर के थ्रू इन्फ्लुएंस करना चाहिए? क्या मुझे और मेरे डिपार्टमेंट का रोल मॉडल बनना चाहिए? क्या मुझे कोई रिवॉर्ड प्रोग्राम इनिशिएट करना चाहिए, सो ताकि लोगों को पुश ना करना पड़े, दे नाउ आर कमिंग एज पार्ट ऑफ द इनकरेजमेंट। ठीक है। इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच में आप ये सोच रहे हैं कि क्या हमें 9 to 5 की ज़रूरत भी है कि नहीं। आई थिंक हमें तो फ्लेक्सिबल आवर्स कर देना चाहिए नाउ, बिकॉज यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। आपकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। आई एम सर्विंग राइट नाउ इन IT इंडस्ट्री। IT इंडस्ट्री में आज से 15 साल पहले तो आप एक डेवलपर को, एक एनालिस्ट को पुश कर सकते थे। इन टुडेज़ एरा, पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड, यू कैन नॉट पुश पीपल to be at office at certain time and cannot leave 5 minutes early. Can you do that? No. Manufacturing में तो फिर भी I understand the kind of labor you have is different, or skilled workers are different, but in IT knowledge workers are different. Their ideology is different. So now in integrated system approach, आपने वो policy रीडू कर दी है, रीराइट कर दिया, और उसके अंदर लिख दिया है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिशन और योर मैनेजर। प्लीज़ डिस्कस विद योर मैनेजर, चूज द हाइब्रिड फैशन फॉर यू फॉर एवरी वीक एंड डिस्कस विद योर मैनेजर। नॉट इवन राइटिंग टू कम टू ऑफिस डेली बेसिस इज कंपल्सरी, ये भी नहीं लिख रहे अब आप लोग पॉलिसी में। ठीक है। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब ही यही है कि आपने लिख दिया है कि फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, बट प्लीज़ डिस्कस विद योर मैनेजर एंड चूज इवन हाइब्रिड फैशन इफ दैट सूट्स यू। मतलब 2 दिन आए, 3 दिन आए, दैट इज अप टू यू। मेक सेंस? लेकिन ये तो सिर्फ IT इंडस्ट्री में ही हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में तो। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के तो अपने रूल्स हैं ना। मैं जो बात कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि वट्स एवर यू आर गोइंग टू डू एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच और एज अ ट्रू HR बिजनेस पार्टनर, आपने अपनी इंडस्ट्री को देखना है। आपको यहाँ बड़े मज़े के एग्जांपल सुनाती हूँ, आई विल बी रेफरिंग दैट लेटर टू। हमारी ये तो सेम इंडस्ट्री की एग्जांपल है, बट ऑफ कोर्स इट अप्लाइज हेयर कि ये जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ी, फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के बाद एक कंपनी ने लगाया कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड फ्री फ्यूल टू आवर एम्प्लॉइज़। दूसरी कंपनी ने उसको देखा देखी कहा कि भाई ये तो इतनी बड़ी कंपनी है और हमारा कंपैटिटर है, इफ़ दे कैन प्रोवाइड फ्री फ्यूल। और इतना सा एक पोस्टर है विच इज़ पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, और सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वी आर प्रोवाइडिंग फ्री फ्यूल टू एवरीवन, टू आवर वंडरफुल पीपल। ठीक है। दूसरे ने उसको देखा और उसने कहा कि जी, उसके ऊपर उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ प्रेशर डालना शुरू हो गया कि भैया आपके कंपैटिटर्स तो ये कर रहे हैं, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने भी लिख दिया कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड फ्यूल टू ऑल ऑफ आवर एसोसिएट्स। ये दोनों कंपनी की एग्जांपल लेके जब हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे पास आए जहाँ मैं काम कर रही हूँ, और उन्होंने कहा कि जी ये तो आपके कंपैटिटर्स हैं, ये तो फ्री फ्यूल दे रहे हैं। नाउ सिंस आई हैव गुड टर्म्स विद बोथ कंपनीज हेड ऑफ HR, I called them and I checked with them that how you're providing fuel free for everyone. I mean, during this time of crisis and economical situation, I mean, how are you doing it, managing it even? One said, Afshin, this is for our executives only, our managers class only. I said, okay. And second said, this is for IT people only. BPO is not part of it. So that's how, unfortunately, things happening. You should be very much aware कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। आपके पास टर्म्स होने चाहिए, आपकी जेब में हर वक्त अच्छे लोगों के नेटवर्क डेवलप्ड होने चाहिए, कनेक्शंस होने चाहिए जिनसे आप इस तरह की ले सकें इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज़ हैपनिंग। नाउ माई एम्प्लॉयज़ कैन नॉट पुश मी। Why? Because I know the inside story. I don't appreciate such kind of marketing tactics
Why? Because even your own employees who are not getting anything out of it must be feeling कि यार सर अब बाहर मार्केटिंग करने के लिए ब्रांडिंग करने के लिए लिंक्डइन पे लगा दिया हमें पता हम तो नहीं ले रहे. And that's the worst idea according to my experience. Because anything which you cannot sell to your inside customers, your internal customers, is a bad strategy, is a bad marketing. Like, it's similar like, आप में से अगर किसी के बच्चे हैं, I'm sure you can experience that. अगर आप खुद से कोई ऐसी आपकी एटीट्यूड में चीज़ है where you are not disciplined or you are shouting on different things or you have anger problem or you drive very fast, how would you teach the same things to your children? We cannot, right? They learn by our actions than our words. Same applies at organizations. अगर हमारे कहने में जो मार्केटिंग हम बाहर कर रहे हैं, जो ब्रांडिंग हम बाहर कर रहे हैं बड़े बड़े लफ्ज़ों में, फैंसी लफ्ज़ों में, if the same ideology is not applied to employees and their families first, they might feel कि ये they are not fair, they are unethical people. So आपने सर जो बात की कि वो हमने अपनी अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से प्रैक्टिसेस देखनी है. ये प्रैक्टिसेस जो मैं आपको जो एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, obviously it applies to IT. Okay, now who talked about HR business partner? Okay, so HR business partner बनने के लिए, and that applies to everyone because that's the purpose of the session. जितनी भी core competencies हैं according to SHRM, SHRM, which is the SHRM का पता है? I mean, you know that it's the highest rated HR certification globally. So SHRM के accordingly जो top competencies हैं जो एक HR professional में होनी चाहिए to become true HR business partner, वो ये है. Number 1, communication. Now, how do you define communication? Anyone? What does this communication mean? कि आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं तो वो नेक्स्ट पर्सन जो है उसको वैसे ही परसीव करे. मतलब आपके कहने का, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे जो भी क्वेश्चन कर रही हूँ, आप समझ चीज को कि मैंने आपसे क्या पूछा. It's a two-way. Okay. Two-way? Communication. Yeah, communication. So your communication should be very neutral. The bright example I would give here is when you are trying to communicate anything particularly which is tactful, tricky, could be reason of pressure for someone, could be reason of stress for someone, be very neutral in your tone. And what does this mean? This means that I am, as per the 5 voices or personality type, I'm different person than you. So if I'll be talking about something which is very sensitive according to my own thinking, so probably my life experiences are different than yours. और अगर मैं वो बात आपको as it is बता रही हूँ without realizing what is your personality type, what kind of person you are, how sensitive you are, and how courageous or bold you are, so that's not a good deal. That's called empathetic leadership. कि जब आप किसी को कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, राइट? तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज HR हैज़ अ टफ कॉल ऑफ announcing the news like layoff, terminations, and unfortunately it is happening around the globe so much nowadays because of the recession and all. So HR's toughest call is not to give them a letter, but to give them news. And that news is kind of stressful for them, of course. So be very empathetic with people. That's the first competency. You should be getting out of your own challenges for the time being when you're communicating with your associates, because all of you, including myself, when I go to work, I have so many things from my family side going in my mind. Something happened on the road, something related to my kids and everything. So we have to be, we literally have to get out of that shell into another shell and then talk to someone. Like आपके जहन में कोई अपनी पर्सनल चीज़ नहीं चल रही. Why I'm saying it? Because अगर आपके जहन में अपना कुछ चल रहा है
अगला बंदा कुछ भी कहेगा आपको ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। और जिसको आप ले ऑफ कर रहे हैं या टर्मिनेट कर रहे हैं या कोई भी और तरह का उसकी लेट्स से कि आप उसके डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत आप उसको कोई कोचिंग सेशन कर रहे हैं, वो आपको भी पलट के कुछ कह सकता है, ठीक है। और डोंट एक्सपेक्ट कि नहीं होगा ऐसा आपके साथ, मेरे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है और हो भी सकता है। सो यू शुड बी वेरी एम्पैथेटिक इन अंडरस्टैंडिंग कि वो जो कुछ भी इस टाइम कह रहा है वो आपके लिए नहीं है। डोंट टेक इट पर्सनल, वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली है। इफ़ यू विल पुट योर सेल्फ इन हिज और हर शेल, यू विल गेट टू नो कि हाउ डज इट फील। सो कम्युनिकेशन शुड बी very neutral, being very empathetic. Second is global effectiveness. Right now we were just talking about how much you should be aware about global trends and what is happening around. Like if I'm serving US market, I should be knowing what is the currency exchange rate related challenges we are facing, how banks are treating them, how employees are taking it, and how my HR practices should be aligned according to the strategy. Like I'm serving real estate business. Real estate business on the US side is not going, let's say, going good. So if I'll keep working on good initiatives, all the goody things happening, वो हम यहाँ पे initiatives भी ले रहे हैं, execute भी कर रहे हैं, and we are posting on social media, what your US side colleagues would be getting out of it? Would you be working as one partner, as one group? They would be feeling कि हमारे यहाँ पे let's say recession है या हमारा business अच्छा नहीं grow कर रहा या anything local challenges we are facing. Similarly, when we were going through this flood situation, so unfortunate situation, if my US colleagues or the people I work with, they are having all the party fun and not being empathetic and not asking what is happening on your side, so I would not take it positive. Number one reason, to have good business partners with each other. Number two, you can only propose practical stuff to your CEO. You can only bring good stuff, meaningful stuff on the table of board of directors when you know the global trends. आपके हमसाए मुल्क में क्या हो रहा है, किस किस्म के टैलेंट का सरप्लस है, किस किस्म के टैलेंट की शॉर्टेज है. When I was hiring here for IT operations team, at the same time, Indian company, I just forgot the name, who laid off Meta, yeah, they laid off how many people? I mean thousands people. Twitter. Yeah, Twitter. Meta, Twitter, both. So basically, they laid off so many people, which created surplus of IT resources in the market, and my neighbor country got an opportunity to hire better talent and in quick turnaround time than myself. So if I'll not be aware of such kind of challenges, what is happening around, particularly if on behalf of my company, same task is given to me and my neighbor country. अगर हम दोनों का target same है, being who is the recruiter here? You, right? So अगर आपके और let's say कि हमारे neighbor country में आपका जैसा ही एक office है, and both are like subsidiaries of some US organization, and you both are given the same kind of targets. So now you are in trouble because पाकिस्तान में IT की resources की shortage है, skilled workers I would say, ठीक है, knowledge workers की shortage है. However, your neighbor country has now surplus of the same kind of resources. So now you need to change your strategy. You need to change your strategy. अब आप वो नहीं कर सकते कि मैं महीने में position fill करूँगा तो that will be okay. Now you need to communicate the same ideology, the same kind of understanding and leadership to your teams so they can implement the same kind of ideology, right? So global awareness is very important. Then relationship management. You cannot take anything personal. If you are an HR, I'm repeating myself, you cannot take anything personal. A mother cannot be brutal with kids, right?
It's not expected. Our father cannot be irresponsible with kids. Not expected as per social norms. As per HR norms, you cannot be personal or taking something personal for your people. So जब भी आपकी आइडियोलॉजी की, आपकी स्कूल ऑफ थॉट्स का डिफरेंस आए विद एनीवन इन द कंपनी, वो CEO है, वो कोई ऑपरेशनल डायरेक्टर है, वो कोई फाइनेंस का बंदा है, या कोई आम रिसोर्स है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं एट एनी लेवल, you need to step back, you need to think about it. And you have to make yourself realize and give yourself a voice that I need to make it settle. I need to make it work. Why? Because it's just a difference of opinion. It's just a difference of, I would say, personality clash, probably. Because I am having different experience, different school of thoughts. This person is different, and that's the beauty of diversity. So you have to, जितना knowledge हम इकट्ठा करते हैं, इतना ज्ञान हम सीखते हैं, वो सब अपने आप को उस टाइम रिपीट करवाएं. And that's the best thing you can do with that person, with that organization, and the best favor you can give to yourself. Because आप खाली उस organization के साथ भला नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को develop कर रहे हैं. You are becoming a more mature version of yourself. और ये उस organization के फ़ायदे के लिए नहीं है. Whatsoever you will be doing throughout your life in personal and professional capacity, that will help you. So relationships are very, very important. Be diplomatic. Don't say it like, I know a few people say, मैं तो हमेशा सच ही बोलता हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा. I would say, मैं तो straight forward हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलूँगी. It doesn't work in HR. It doesn't work anyways because we are dealing with humans. Humans are dealing with so many things nowadays. So be very diplomatic. आप डिप्लोमेटिक का ये मतलब नहीं है कि मुनाफकत नहीं कर रहे आप. ये नहीं कि आपने कहना कुछ और है और कह कुछ और रहे हैं. दैट डजंट मीन द बीइंग डिप्लोमेटिक. बीइंग डिप्लोमेटिक का मतलब ये है कि मैसेज उस तरह से कम्युनिकेट करें कि उसको उसकी पॉजिटिव साइड नज़र आए. अगर आप किसी की वार्निंग सेशन कर रहे हैं और वार्निंग सेशन आप कह रहे हैं तुम्हें पता नहीं है कि ये काम करना था तो तुम्हें क्या मिलना था, अब तुम इंक्रीमेंट का टाइम उठा के आ जाओगे कि ऐसे करना है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना. सेम मैसेज को आपने कम्युनिकेट करना है कि आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी से आपकी कंपनी की आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि पॉलिसी के तहत आपको ये सब चीज़ें बताई गई थी. बट प्लीज़ डू लेट मी नो अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, अगर आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ तंग कर रही है जो कि आपको 100% नहीं करने दे रही, बिकॉज आई कैन सी यू आर प्रोफेशनल, यू कैन डू इट. सो काम वही है, चीज़ वही है, कंपनी की आपने वही एक्सपेक्टेशंस आगे पहुंचाई हैं, बट लिटिल डिप्लोमेटिकली. जितना मर्जी आपको लग रहा है कि ये बंदा जानबूझ के 2 नंबरी कर रहा है, मुझे पता है ये सिगरेट पीने तो 10 दफ़ा जा सकता है लेकिन सीट पे बैठ के अटेंटिव नहीं हो सकता. व्हाट्सएवर आपको जो मर्जी इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, आपने बड़ा वो सेशन को न्यूट्रली करना है विदाउट ब्रिंगिंग एनी बाइसेस अराउंड इट. एथिकल प्रैक्टिसेस, ये वो मुनाफकत वाली बात भी थी कि अगर आपकी एथिकल प्रैक्टिसेस ट्रू नहीं हैं, बिकॉज फॉर HR फाउंडेशन इज़ ट्रस्ट. फॉर एनीथिंग एक्चुअली फाउंडेशन इज़ ट्रस्ट, बट एम्प्लॉई HR रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट. People will only come to you with their challenges. You will only be able to influence someone or coach someone and help someone be the better version of themselves when you have your own ethical values as strong entity and reflected in your practices day to day. जो आप बातें कर रहे हैं, like अभी मैं ये सारी बातें आपको रिकॉर्डेड शो में बता रही हूँ. लेट्स से कि मेरा कोई भी ऐसा रिसोर्स जो मेरे साथ अभी काम कर रहा है या प्रीवियसली काम कर चुका है, वो ये सुनता है और उसके साथ मैंने कभी कोई ज़्यादती किया, तो क्या कहेगा? 15-20 लोगों को तो ज्ञान बांट रही हैं, अपनी प्रैक्टिसेस इनकी डिफरेंट है. एंड आई कैन नेवर से दिस मच कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ यू एंड द कैमरा if my practices are different. This only happens when you know that it is happening. And I'm saying it in front of a recorded camera that in my 17 years of career,
I did not take any decision which reflects my personal likeness or dislikeness. I always reflected back, I stepped back and made myself realize that I have to take a fair decision, regardless मेरी school of thoughts जो भी कहती हैं. So as per company policies, as per social norms, whatsoever is fair with that person, only those decisions are taken. ठीक है? So आपकी ethical practices strong होनी चाहिए. So people take good influence from you. Then critical evaluation. You should be a critical thinker in analyzing any situation. ये नहीं कि मैं इनको रिपोर्ट करती हूँ, मैंने इनके कान में फूंक मार दी कि सारी वो तो ऐसी है. आपको वो कह रही है मैंने छुट्टी इस वजह से की है, असल में ये बात नहीं है, मैंने तो परसों उसको शादी पे देखा था. आजकल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं. मुझे एक रिसोर्स आके कहता है कि आपने उसको छुट्टी दी हुई है बिकॉज वो कह रहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे कोविड हो गया एंड दिस एंड दैट. मैंने तो उसके स्टेटस पे देखा वो तो मर ही गया हुआ. So should I be in the confused state of frame of mind? No, right? Because ऐसे when you work in HR, so बहुत सारे लोग आपसे बना के रखने के लिए आपके कानों में ऐसी फूंके मारते रहेंगे. And you have to be critical thinker in evaluating any situation and set a boundary. मैं अक्सर अपनी टीम को कहती हूँ like locally we are like 590 people, globally we are 7,000 plus as part of Stewart. Or almost with everyone I interact with is good friend of mine, but professional friend of mine. Nobody can tag him or herself as my buddy and can tell someone कि मैं तो अफशीन के बहुत क्लोज हूँ, so whatsoever कोई काम करवाने दो मुझे बताओ. So मैं अपनी टीम को भी हमेशा ये कहती हूँ कि HR should be a good professional friend, mentor, buddy for everyone in the company, but किसी का भी 19-20 नहीं होना चाहिए. At same level for everyone. So nobody can tag you as his or her personal friend and influence someone else. Right? HR expertise. The whole concept of HR. The whole concept of HR. If you are a true HR business partner, that means आपको अपने सारे functions पे grip होनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि file management is a small task. वो तो मुझे नहीं भी आता तो खैर है, वो तो मेरा HR generalist 1 level का resource कर देगा. No, you should know how does it work. You know उसकी legal implications क्या होती हैं. You should know कि क्या checklist हर दफ़ा follow हो रही है कि नहीं. You should be the one जो कि randomly जाके उसका audit कर ले. You should know how to do it yourself ताकि अगर कोई आपको रिसोर्स आके ये कहे कि मुझे तो 100 फाइलों के ऊपर 10 दिन चाहिए उसको बनाने के लिए, तो आपको पता हो कि भाई ये काम तो मैं अपने हाथ से कर चुकी हूँ एंड आई नो कि इट डजंट टेक मोर देन 1 day probably or 4 hours. So you can only coach your team and bring efficiency out of it when you know that how does it work. Same applies to learning and development. अगर आपका if you are working at director level, you have learning and development manager and he or she says to you, we need to bring communication trainer next week to train these many people. You can ask the question if she or he did the right assessment. आपको पता हो ROI कैसे निकाला उसके ऊपर. ये सब आपको तब पता होगा जब आपको ये सारे functions का खुद से आइडिया होगा. So HR expertise आपकी अच्छी strong होनी चाहिए. Then business acumen. How many times it happens कि let's say मैं manufacturing industry से आई हूँ previously, right? और now first time I joined this organization. So मेरी पहली कोशिश क्या होगी? या आप अपने पर रख के सोचें कि आपने आज ही organization join की है या कल परसों, तो पहली आपकी कोशिश क्या होगी? Interact with people. Okay. And understanding all scenarios. लेट्स से आपका CEO आपको कहता है कि मुझे एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके ला दो जो आप पहले भी कर चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? This time it is different because the business is different. You need to know the business strategy first. All love for you. That's true.
मोस्टली लोग ये गलती करते हैं कि जो सीख के आए होते हैं, बेशक वो इंडस्ट्री डिफरेंट है, बेशक वो बिज़नेस डिफरेंट है, बेशक वो फॉर्मेट्स डिफरेंट है, बेशक वो एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है, सबसे पहले वो चिपका दो। पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, पहले महीने में इंप्रेशन बना दो कि ये रहा जी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क, ये रहा जी ROI कैसे कैलकुलेट करना है उसका सारा स्ट्रक्चर, मैंने पिछली कंपनी में वर्कडे इम्प्लीमेंट किया था जी, बहुत अच्छा सिस्टम है, वही ले आए। बेशक वर्कडे के अंदर वो प्रोसेसेस या वो चीज़ें इंप्लीमेंट ही ना होती हैं जो इस इंडस्ट्री को सूट करती हैं, बेशक वो डैशबोर्ड्स हमें चाहिए ही नहीं है जो इस इंडस्ट्री को सूट करते हैं। सो बिजनेस एक्यूमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड देन बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैंने पिछले 10 साल में भी IT इंडस्ट्री को सर्व किया है, लेकिन मैं अगर पहले सिस्टम्स लिमिटेड को सर्व कर रही थी, उनकी आइडियोलॉजी और लीडरशिप बिल्कुल डिफरेंट थी। अब मैं स्टुअर्ट को सर्व कर रही हूँ विद द सेम काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी एंड स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है। सो इफ़ आई विल बी हैविंग सेम स्कूल ऑफ थॉट्स, सेम प्रैक्टिसेस, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ unlearn and relearn. This is very, very important for HR. On daily basis, you should be flexible enough and open enough to learn things according to the today's time. Pre-COVID, same company के साथ हमारी strategies बिल्कुल different थी, during COVID बिल्कुल different थी, and post-COVID things are very different. Now the expectations from the HR is very different. Now we have to bring more initiatives around how to bring people back. What to show them different? Leadership and influence. Different kind of skilled workers or labor or knowledge workers. इन सब के लिए आपकी जो leadership है that will be and should be different. जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, empathetic is something which is a core thing that you can follow with every leadership style. बट लेट्स से कौन लेबर क्लास के साथ काम कर चुका है? एनीवन? ओके, राइट। सो सर आप मुझे बताएं कि लेबर क्लास के साथ किस किस्म की लीडरशिप होनी चाहिए? मेरे हिसाब से अगर मैं अपने ऊपर रख के बात करूं तो हमें उनके लेवल पर आके ना समहाउ बात करनी पड़ती है कि अब ब्लू कॉलर्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप जेनेटेरियल स्टाफ अलग है, उससे ऊपर का स्टाफ अलग है, तो फिर जब उनको रिक्रूटमेंट करनी है या उनका आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पहले उनके लेवल पे खुद को लाकर उनकी सारी बात सुननी पड़ती है, फिर उन्हीं के ही पॉइंट्स के साथ उनको फिर आपने फैसिलिटेट करना पड़ता है, उन्हीं की बात को पकड़ के। एग्जैक्टली। सो ये है व्हेन यू आर डीलिंग विद लेबर क्लास। And again, he very beautifully explained that it does not, even rules in the labor class does not apply at all levels. अगर आप सुपरवाइजरी लेवल पे बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ही वो उस बंदे का एक्स से डिफरेंट है। वो तो हॉलीवुड का स्टार है जी अपने आप में, जो सुपरवाइज़र है उनका, ठीक है। और इसी तरह आप IT स्किल्ड वर्कर्स से अगर बात कर रहे हैं तो उनके लिए लीडरशिप बिल्कुल डिफरेंट है। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट देयर लेटेस्ट सर्टिफिकेशन, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर लेटेस्ट ट्रेंड्स, दे आर टॉकिंग अबाउट कि टैक्स एग्जम्पशन तो फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिबेट दे रही है, आपने जो है ना वो इतने इतने टैक्स काट रहे हैं, आप भी अंडर द टेबल कोई सोल्यूशन ढूंढें एंड दिस एंड दैट। सो उनके चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट हैं। सो योर लीडरशिप स्टाइल, योर इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंगली। अब आप कहेंगे कि हर तरह की इंडस्ट्री में हम सर्व करते हैं तो हम हर तरह की इंडस्ट्री के साथ वो चीज़ें कैसे सीखें? फॉर दैट आई वुड गिव यू अ वेरी गुड एडवाइस एंड दैट इज़ गेट योर सेल्फ इक्विप्ड with good mentors in the market. There are so many people in the market who are willing to give you good time, energy, and good advice if you are sincere with your career. There are people in the market at all levels. From basic joining के level से लेके like अभी किसी ने अपना career start किया है तो उसके लिए भी mentors हैं, कोई अपने career के mid में है, कोई senior level पे है. So everybody in the market in the form of mentors are available. But to understand more and more about each industry, each practices, you should be flexible enough to get out of your comfort zone. Regardless you are a male, female, introvert, extrovert,
you are having kids like me and have not time to go out to meet mentors, or you are a teacher, or whosoever you are, and whatsoever your circumstances say, you have to get out of your comfort zone and meet your mentors once a month at least, and be very specific what you want to accomplish out of those sessions. Because जो mentor market में बैठे हुए हैं, आपको time देने को तैयार हैं, अगर आपके पास स्पेसिफिक एजेंडा नहीं होगा तो 1 से 2 मुलाकातों के बाद वो भी फिर तंग आ जाएंगे कि somebody is not very specific, very goal oriented. तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं, लेट्स से कि आप सलीम गौरी साहब के पास जाते हैं और आप उनसे टाइम मांगते हैं और आप उनसे कहते हैं कि मुझे सिर्फ आपने आधे घंटे में ये सिखाना है कि IT इंडस्ट्री में एज एन HR बिज़नेस पार्टनर मुझे क्या चीज़ों की पेन लेनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग में क्या लेनी चाहिए, बिकॉज पहले मैं IT में था, अब मैं मैन्युफैक्चरिंग में. Let's say somebody approaches me and asks me specifically कि मुझे performance management system के बारे में बता दें. And it happens. And I gracefully, I would say, give my time to those people who are sincere for their development. So get yourself very well equipped. जहाँ हम इतना टाइम अपने लिए निकालते हैं, अपने ट्रिप्स अरेंज करते हैं, अपने सलोन्स का टाइम निकालते होंगे, जिम का टाइम निकालते होंगे, so many extra activities we do. We should be giving ourselves this favor and go and meet someone that you get inspirations from, anyone at any level, from any organization. Approach them very gracefully, request them for their time, take care of their convenience, and then try to learn every month from your mentors. ये चीज़ें सीखना कोई rocket science नहीं है. It's the matter of investment of time in yourself. And then consultation. Okay, so HR is a consultant by its nature of job. आप consultancy का role आपको पसंद हो या ना हो, it's part of HR. You have to mentor your people, you have to coach your people as a consultant. और consultant की definition क्या है? What is the beautiful definition of consultant? A neutral party. Do not consider कि, and it's called balancing between being advocate of employees and consultant or lawyer from employer. ये स्ट्रगल आई एम श्योर सारे HR ही करते होंगे कि हम कंपनी की साइड लें या हम अपने एम्प्लॉयज़ की साइड लें. वी नो दैट एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फेयर कह रहे हैं कोई बात, बट हमारे CEO कुछ और कह रहे हैं. सो कीप अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन दिस. आप किसी की भी साइड नहीं लेंगे, आपने बैलेंस करना है, आपने सिस्टम में फेयर चीज़ें इनकरेज करनी है. इफ़ योर CEO इज़ रॉन्ग, ही और शी इज़ डूइंग समथिंग अनएथिकल, discuss with him or her privately. और CEO से बात करने का ना एक बड़ा मज़े का तरीका है. आपने ये नहीं कहना सर आपको पता है दिस इज़ सो अनएथिकल, मतलब और अगले दिन बस आप ही ऑफिस में नहीं होंगे, बाकी सब वैसे ही होगा. ठीक है, तो CEO आपका सेठ हो या CEO आपका, आई मीन सेठ से मेरी मुराद है फैमिली बिजनेस, या CEO आपका कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, दोनों केसेस में आपकी जो तरीक़ाकार है वो होना चाहिए कि CEO को क्या फ़ायदा है आपकी इस बात से. आप CEO को सिखा रहे हैं कि यह अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, तो CEO को बताएं कि आपके बिज़नेस पे कितना बुरा असर पड़ेगा इस बात का. वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा तो आपके बिज़नेस पे कितना बुरा असर पड़ेगा. टेक योर स्टैट्स विद यू, टेक सर्वेज विद यू. फोर्ब्स के सर्वे इंतहाई क्लासिक होते हैं. अपने डैशबोर्ड्स तैयार करें, अपने सर्वेज लेके जाएं, 4 मार्केट अपने कंपैटिटर की 4 की इन्फॉर्मेशन लेके जाएं कि देखें वो ये प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो हमसे मार्केट शेयर में इतने ज़्यादा हैं. जब आप उसकी ज़ुबान में उसको बताएंगे, आई एम श्योर समझ आएगी. एंड देन दैट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड. अगर समझ नहीं आती देन खुद समझ आना चाहिए कि आपको कहीं और चले जाना चाहिए. खुद की सुन लो या पेट की सुन लो. हाँ, आप फिर आपको ये समझ जाना चाहिए कि नाउ इट्स द टाइम टू मूव एंड वर्क विद पीपल हु आर बेटर देन यू, हु कैन बी योर मेंटोर, रादर यू आर स्ट्रगलिंग in making impression of your HR. That era has gone. When I started my career, it was the time 17 years ago when companies
HR had to justify to companies that why do you need me? HR क्या value add कर रहा है? This is not the time. Alhamdulillah, in these years of struggle by good HR professionals, now company knows the worth of HR. और जो थोड़ी बहुती अगर किसी को नहीं भी पता थी तो वो कोविड ने बता दिया। कोविड के दरमियान HR ने कैसे बूम किया है, HR ने क्या वैल्यू ऐड की है और जिसने की है वो कहाँ तक गया बिजनेस, ये सब पता चल चुका है आपके CEO को, क्योंकि CEOs आपके हमसे ज़्यादा जो है ना वो ये CNN, फोर्ब्स और ये याहू फाइनेंस को फॉलो करते हैं, उनको सब पता है व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। तो अब आपकी स्ट्रगल ये नहीं है कि आपने एज एन HR अपनी वर्थ बतानी है, तो आपने अपनी जगह चूज़ करनी है, बट डोंट डू दैट फुलिशली। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि पेट की सुनो, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, दैट्स क्वाइट प्रैक्टिकल। तो फिर आपने अपनी जगह ढूंढनी है और फिर मूव करना है, एंड बैक बाइटिंग नहीं करनी। रिगार्डलेस आपके जितने भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपने उनका बुरा बोल के नहीं जाना, नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट और नॉट बिकॉज आपकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। यू हैव टू बी दैट पर्सन ऑफ वैल्यूज़ एंड एथिक्स जो कि इस तरह की सिचुएशन में मैच्योर बिहेव करे। बेशक आप जिस मर्जी नोट पे छोड़ के जा रहे हैं, कभी भी कंपनी का वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बुरा नहीं करें, बिकॉज इवेंचुअली दैट टेल्स अबाउट योर करेक्टर। Okay, then how to be a strategic business partner. How many of you are okay with this? सबको clarity हो गई? Okay, I'll be sharing these slides with you. I understand as this is not really something, I mean, that I cannot. I think I should be sharing these slides with you so you can review and get back to me if you need any clarity even afterwards. I'm available through LinkedIn or Facebook. So ये वो competencies हैं according to Shram model, which is highly recommended for every HR professional to be a strategic HR business partner. और ये मैं नहीं, global bodies कह रही हैं Shram की, ठीक है। और okay, so when we talk about strategic HR business partner, strategy क्या होती है? Strategy, simple strategy, any raw definition of strategy, what is that? A course of action. Course of action, okay, ठीक है। So moving from here to you, right? So this is point A, this is point B, how to go from point A to point B. So this is the process of strategy. How you'll be defining your strategy. मैंने इस रास्ते से जाना है, मैंने ऐसे जाना है, मैंने साथ accessories क्या रखनी है, मुझे resources कौन से चाहिए होंगे, what if this happens, what if that happens. So this is complete strategic management. So quickly you can go through this. Done? Yes. What does this mean? Anyone, whatever you are getting out of it. जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि पास में हम कहाँ पे थे और अभी जो है हम हमें किन किन चीज़ों पे काम करना है, किस तरह से आगे जाना है, तब तक हम अपने गोल्स और बाकी चीज़ों को अच्छे से जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हम चूँकि HR बिजनेस पार्टनर की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप कंप्लाइंस लेवल पे हैं, आप सोल्यूशन लेवल पे हैं, आप स्ट्रेटेजिक पे हैं, आप इंटीग्रेटेड अप्रोच पे हैं, जब तक आपको पता नहीं होगा तो आपको ये नहीं पता होगा मैंने बेहतर क्या करना। रिक्रूटमेंट एंड ऑन बोर्डिंग, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, राइट। किसी को भी probably talent acquisition is the first title somebody gets in HR. And why it is so? Because this is the basic function of HR. This is the core requirement of HR. And we have to bring what? For the organization, what we need to do? Quality candidates, perfect match in terms of their skill set, in terms of their attitude, in terms of their cultural fit, in terms of budget constraints, in terms of long-term stability and commitment of the organization.
So we have to bring the best as per, not the best as per our own definition, but best as per the written requirements. हमने उसके लिहाज से बेस्ट रिसोर्स लाना होता है. The basic mistake I have observed in my experience that people make, that mistake is that once I hired him, given it to the operational manager, my job is done. That's not fair. That's not what HR strategic business partner does. HR business partner का काम है कि onboarding process को strengthen करें, at least 6 months तक closely observe करे if somebody is best fit for the organization, if all the resources he or she needs to perform his job are there, provided, all the support that is required by the newbie to the system is provided, granted, or the someone who's just joined the organization is really fulfilling the criteria that he or she promised throughout the interview process. So that's onboarding process. जितना आपका onboarding process strengthened होगा, उतना it will be easy for you to retain a good talent for the company. As per Forbes survey, 50% to 150% of the annual salary of the person is the replacement cost. So replacement is always heavy on company's shoulder. So be very specific in retaining a good talent, and that will only happen if your first step is done with due diligence and when you really took care of the onboarding process. Okay, so what do? We focus on एक जेडी मिली है, उसको सोशल मीडिया पे लगाया, रेज्यूमेज आना शुरू कर दिए, ऑपरेशनल मैनेजर को भेज दिए, इंटरव्यू करवा दिया, एचआर इंटरव्यू कर लिया. इसकी निस्बत एक स्ट्रेटेजिक एचआर बिजनेस पार्टनर की क्या अप्रोच होती है जब जेडीआई क्या किया? गर्ल्स आर टेकिंग द लीड. ओके, ज़रूरत है कि नहीं? देन हाउ डू यू चैलेंज ऑपरेशनल मैनेजर की ज़रूरत है या नहीं? यही जेडीएस कोई और कैंडिडेट भी कर सकता है कि नहीं उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशंस. सो बेसिकली आप ऑपरेशनल मैनेजर को अब सारे डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर दें आपस में, ठीक है? आपने डॉट कनेक्ट किया जो इन्होंने कहा था बिजनेस. आपको जब पता होगा कि आपकी सेल्स की टीम के क्या टारगेट्स हैं, उनके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो काम करने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, नाउ यू नो इसकी ज़रूरत है कि नहीं. नाउ यू कैन डिस्कस विद दैट लीडर कि इसकी ज़रूरत है या नहीं, और अगर ज़रूरत है तो क्या हमारे पास इंटरनली कोई एसोसिएट नहीं है जो कि प्रमोट करके इस लेवल पे आ सकता है. अगर वो डिस्कशन भी हो गई है, देन जेडी मिल गई, अब वो पोस्ट होने जा रही है बिकॉज वी नीड अ पर्सन, वी हैव डन द प्री रिक्विजिशन डिस्कशन. व्हाट टू डू? एक जो डॉक्यूमेंट आपको मिला 15 पॉइंटर्स वाला, क्या करेंगे? उसको कैसे पोस्ट करेंगे एज इट इज़? जो हमारे पास पहले से रिज्यूम्स होंगे, हम उनको भी पहले देखेंगे, उनसे गो थ्रू करेंगे कि इसमें कोई फिट मैच है. ओके, सो सबसे पहले आप उसके अंदर से की पॉइंट्स निकालेंगे. की सर्च वर्ड्स होते हैं ना, अब वो निकालेंगे. टेक्निकली कैसा बंदा चाहिए, एटीट्यूड वाइज कैसा बंदा चाहिए. अगर तो मेरा डिपार्टमेंट जो है नाइट में काम करता है तो आई स्पेसिफिकली नीड टू मेंशन कि समवन शुड बी फ्लेक्सिबल वर्किंग इन नाइट शिफ्ट. If my requirement is to hire someone Cisco certified, तो I need to specifically mention which certification. So keywords pick कर रहे हैं आप. If somebody has to deal with US office directly, so somebody needs to be very good at English communication. If somebody needs to lead a team or manage a team, somebody needs to be a good leader. So now आपने सब search words निकाले, उनका एक स्पेसिफिक अट्रैक्टिव जो पोस्ट बनाया, उसको पोस्ट किया. नाउ अब क्या करेंगे? लिंक्डइन पे और फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, दैट्स इट? क्या करेंगे? रिज्यूमेस आएंगे, वैल्यूएशन स्क्रीनिंग. नहीं, आई मीन पोस्ट करते हुए क्या स्टेप है? हैशटैग्स. हैशटैग्स. वेयर टू पोस्ट? इन हाउस पोस्ट करेंगे एंड इन हाउस.
अपने एम्प्लॉयज़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, रेफरल फ़ी का इनिशिएटिव अनाउंस कर देंगे कि चूंकि ये कॉम्प्लेक्स पोजीशन है, इसके लिए आप अगर कोई बंदा रिकमेंड करते हैं वो हो जाता है, उसकी कंफर्मेशन पे आफ्टर 3 मंथ्स प्रोबेशन आपको ये रेफरल फ़ी मिलेगी। आपने अपने एम्प्लॉय को, अपने इंटरनल कस्टमर को भी सेटिस्फाई किया, उनके लिए भी फ़ायदा सोचा, एक अच्छा रिसोर्स भी लेके आए, आपकी एफर्ट्स में आपका एक ब्रांड एम्बेसडर भी बन गया। और आपने एज इट इज़ वो नहीं किया, आपने उसके अंदर एफिशिएंसी लाए, आपने समझा कि मुझे क्या पोस्ट करना है, कहाँ पोस्ट करना है, मेरी ऑडियंस कहाँ है। फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप पे स्पेसिफिक ग्रुप्स बने होते हैं। आईटी का बंदा चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का चाहिए, रिटेल का चाहिए, सेल्स का चाहिए, नेटवर्किंग का चाहिए, सिक्योरिटी का चाहिए, जो चाहिए उसके अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिव ग्रुप्स फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप पे बने होते हैं। आपको अपनी इंडस्ट्री के मुताबिक उन ग्रुप्स का पता होना चाहिए, और वो आपको मिलेगा अपनी ही इंडस्ट्री में अपने सीनियर्स को फॉलो करके, उनसे बात करके, उनसे एडवाइस लेके, राइट। तो उन स्पेसिफिक ग्रुप्स पे जाके पोस्ट करें एंड बी वेरी स्पेसिफिक कि जब आप अप्लाई करें तो टैग लाइन में ये मेंशन करें, सो आपका रिज्यूमे जंक में ना जाए, ठीक है। और अब तो खैर विल टॉक अबाउट द सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ इट, जो कि आपको इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग में वो वैसे ही शॉर्ट लिस्ट कर देगा बंदे हु डू नॉट फॉल अकॉर्डिंग टू द सर्च वर्ड्स जो आपने पिक किए हैं, ठीक है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ every employee is a VIP employee. Make them feel that way. How? Latest trend is now you do not go to social media and ask yourself as HR business partner that I'm looking for someone with these kind of skill set. You ask your people to make a clip of like few seconds, 30 seconds. लेट्स से मैंने मार्केटिंग का बंदा हायर करना है, सो आई विल गो टू माई मार्केटिंग डिपार्टमेंट, द बेस्ट पर्सन, वेल स्पोकन पर्सन, आई विल गो टू हिम और हर, आई विल आस्क हिम और हर टू मेक अ शॉर्ट क्लिप फ्रॉम हिज साइड एंड रिकॉर्ड अ मैसेज. Hi, I'm Ahmed, I'm working with Stuart Pakistan and I'm working as marketer. I know how good this organization is. If you want to be a part of growth-oriented mindset company where you're not paid well, where you know how to flourish your spark, this is the place. Go ahead and apply at this address of mine. Perfect. Now your brand ambassador is selling you. Number one, this is strategic approach. You are not like donkey is not a right word, but you are not doing an orthodox kind of approach जहाँ पे आप एक mundane task करी जा रहे हैं और उसकी कोई value नहीं ऐड हो रही. Rather you are investing this energy on something else, good, productive, और ये marketing वाला काम आपकी अपनी टीम ही कर रही है. आपने वो पकड़ा, अपने Facebook, LinkedIn की पेज पे लगाया और उसको भी कहा शेयर करें अपनी ग्रुप्स में. ये लेटेस्ट ट्रेंड है. आजकल लोग ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और जब आपके इंटरनल एम्प्लॉयज़ आपके बारे में बोल रहे होते हैं अच्छा, तो एक्सटर्नल ऑडियंस हमेशा ज़्यादा अटेंशन पे करती है देन HR जाके अपने आप को सेल कर रहा हो. यही वजह है कि इट इज़ हाईली रिकमेंडेड व्हेन यू विजिट जॉब फेयर्स एंड अटेंड career fairs for specifically for hiring purpose and branding purpose, take your people with you who can tell your story rather you are selling yourself. Make sense? रेफरल एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स रेफरल हम देते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, कहीं से आपको नहीं परफेक्ट सूटेबल कैंडिडेट मिल रहा होता है, नॉर्मली तब कर रहे होते हैं हम ये लोग. पर्पस पे डिपेंड करता है. अगर आपका पर्पस ये है कि यू नीड अ सपोर्टिंग हैंड फ्रॉम पीपल, तो फिर आप ये करते हैं कि अच्छा HR इज़ गेटिंग टफ टाइम, रादर पेइंग फुल टाइम वन सैलरी टू कंसल्टेंट टू गेट द पर्सन हायर्ड फॉर यू. आप अपने एम्प्लॉयज़ को लाइक वेरी मिनिमल अमाउंट 5,000 to 15, 20, 30 दे देते हैं उस फॉर दैट स्पेसिफिक पोजीशन. दूसरी रीजनिंग ये होती है कि you want to encourage your people to send more and more referrals, so you have the more authentic pool available. क्योंकि जो आपका करंट एम्प्लॉई आपको दे रहा है वो बहुत सोच समझ के दे रहा है, उसकी अपनी भी रेपुटेशन स्टेक पे.
आपने उसको पूछना है कल को अगर वो अच्छा कैंडिडेट ना निकला। तो वो जो आपको शॉर्ट लिस्टिंग करके देगा वो एक AI सिस्टम के तहत पूरा एक प्रॉपर शॉर्ट लिस्टिंग होके आ रही है। मैं ऐसा बंदा दूं जो कल्चरली भी फिट हो, स्किल सेट भी मुझे पता है, मेरी कंपनी का माइंडसेट भी मुझे पता है, इस तरह के मैनेजर के साथ इसने काम करना है तो मैं उसी तरह का बंदा दूं। तो वो एक फर्स्ट क्लास किस्म की ऑन द जॉब शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है। सो अक्सर आप ये स्ट्रेटजी इसलिए भी अडॉप्ट करते हैं। एनीथिंग ऑन रिक्रूटमेंट, आई एम श्योर यू नो द प्रोसेस, राइट? प्रोसेस तो सबको पता है। मैं एक दो चीज़ें बता देती हूँ जो कि मेरी कंपनी में मैं फॉलो करती हूँ और उससे बहुत अच्छा ऑन बोर्डिंग यूज़र एक्सपीरियंस आता है। दैट इज़, एक रिसोर्स शॉर्टलिस्ट किया, ओके आई विल स्टेप बैक एंड लेट मी कम बैक विद द फर्स्ट स्टेप। रिक्विजिशन आई। रिक्विजिशन सिस्टम में अप्रूव करने से पहले हैव अ डिस्कशन विद मैनेजर, what do we need it, do we have anyone internally who can fill it out and can be best version of it, can we sell this internally first, do we have time? So we take 1 week, हम इसको internally sell करते हैं, company wide roll out करते हैं, लोगों से कहते हैं कि अपना interest बताएं, maybe from someone from another department is suitable for this position। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलरली ये 4 से 5 ब्राइट एग्जांपल्स हैं मेरे पास। जब हमने इंटरनली रोल आउट किया तो समवन हु एट द बैक एंड विद एज पर फॉलोइंग हिज और हर ओन गोल, समबडी स्टार्टेड डूइंग CS डिग्री, और हमें नहीं पता था क्योंकि हमारे पास तो वो BPO में काम कर रहा है। बट व्हेन आई अनाउंस द पोजीशन ही स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड ही सेड कि मैं तो CS डिग्री कर ही सिर्फ इसलिए रहा था कि मैंने IT में जाना था, यू आर लुकिंग फॉर फ्रेश ग्रेजुएट विद सम फुल स्टैक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड आई परफेक्टली फिट टू दैट, बिकॉज मैं तो साइमल्टेनियसली 2 इंटर्नशिप्स भी कर चुका हूँ जस्ट बिकॉज कि मैंने करियर वहाँ परसू करना है। अब आपका टैलेंट बच गया और आपकी इनिशियल जितनी भी कॉस्ट थी ऑन ट्रेनिंग द पर्पज़ इज़ ऑलमोस्ट गॉन। सो ये सारी डिस्कशन के बाद जब आप उसको पोस्ट करेंगे, अगेन आपने शॉर्ट वर्ड्स निकाले, उसके अंदर कीवर्ड्स निकाले, बड़ी अट्रैक्टिव सी, नॉट हैवी एट ऑल। जो पोस्ट करना है ना उसका कंटेंट बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। जितना हैवी बनाएंगे 2-4 लाइनें पढ़ के लोग बोर हो जाएंगे और पढ़ेंगे भी नहीं पूरा। सेल करें टैग लाइन को। लेट्स से कि आप IT के बंदे ढूंढ रहे हैं तो आपकी जो टैग लाइन है, आर यू रेडी टू डेवलप योर करियर एज पर द लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ IT वालों के लिए इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैची कि वो लेटेस्ट सर्टिफाइड हों टेक्नोलॉजी पे। आर यू रेडी टू वर्क ऑन द लेटेस्ट IT टेक्नोलॉजी? ये IT के लिए टैग लाइन है, ठीक है। तो टैग लाइन उसको क्या मैटर करता है, उस ऑडियंस को, वो आपकी होनी चाहिए। फिर आपने वो पोस्ट किया, रेलिवेंट ग्रुप्स आपको पता हैं, शॉर्टलिस्टिंग हुई, शॉर्टलिस्टिंग में से कीवर्ड्स निकाले, उसको एक इनिशियल कॉल लाजमी की टू एवेल्यूएट, टू मेक श्योर कि ये हमारे ये 5-6 क्राइटेरिया पे बिल्कुल फिट हो रहा है। उससे पहले आपकी ऑपरेशनल मैनेजर से डिस्कशन हो चुकी होनी चाहिए, आपके पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। सॉरी, आई एम पिकिंग अप मोर पेस बिकॉज टाइम इज़ लेस एंड आई नीड टू कवर मोर, सो प्लीज़ बेयर विद माई पेस। सो आपने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाने हैं जो कि आपने मैनेजर के साथ बैठ के डिस्कस कर लेने हैं कि जब मैं इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग कॉल करूं, इज़ इट ओके विद यू कि मैं ये क्वेश्चंस पूछूं या यू वांट मी टू ऐड समथिंग एल्स। क्वेश्चंस ऑथराइज करवा के आपकी लिस्ट भी बनती जा रही है। आपके पास अब उस पोजीशन के लिए शॉर्टलिस्टिंग क्वेश्चंस आ गए हैं। नाउ यू नो दैट पोजीशन एंड डिपार्टमेंट मोर देन बिफोर। अब आपको पता लग गया उस मैनेजर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस डिपार्टमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। साथ साथ बिजनेस एक्यूमेंट भी बढ़ रहा है, बिजनेस नॉलेज बढ़ रहा है, ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है। आपका तो प्रोसेस बेहतर हो ही रहा है। आपने कॉल्स की, शॉर्टलिस्ट किया, उसकी डिपेंडेबिलिटी लाजमी चेक करें। कोई शख्स जो कि फॉर द टाइम बीइंग मार्केट में अपने आप को सिर्फ टेस्ट करने के लिए, वाटर टेस्ट करने के लिए जॉब ढूंढना चाह रहा है, अपनी पोजीशन फिल करने के लालच में या अच्छे कैंडिडेट देने के उस माइंडसेट में ना रहें कि मेरा काम तो अच्छे कैंडिडेट देना है ना, आई नो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ही इज़ नॉट गोना स्टिक अराउंड, ये तो दूँ मैं, मेरे तो नंबर बन जाएंगे ना, मैं अच्छे कैंडिडेट दे रहा हूँ। दैट्स नॉट फेयर विद द सिस्टम, दैट्स नॉट फेयर विद यू योर सेल्फ। क्योंकि ये अप्रोच बहुत जल्दी वो मैनेजर कैच कर लेगा या आपका मैनेजर कैच कर लेगा और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। दैट टेल्स कि आपका मकसद कंपनी में वैल्यू ऐड करना नहीं है, बल्कि आपका मकसद जो है वो अपने नंबर बनाना, बस दैट्स इट।
अपनी जॉब 9 to 6 पूरी करना है, एंड दैट्स नॉट अ फेयर इम्प्रेशन. सो आपने इंटरव्यूज़ करवाए, इंटरव्यूज़ में खुद बैठें, हर इंटरव्यू में बैठें, साथ साथ नोट करें कि मैं अपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में क्या क्या ऐड करूँ. अच्छा, इसने ये पूछा था, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी बंदे को अप्रोच करूँ उसको ये भी आना चाहिए. सो आप ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है, बिजनेस एक्यूमेंट बढ़ रहा है, उससे रिलेशनशिप बिल्डिंग हो रही है, कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग फर्दर बेहतर हो जाएगी. सारा प्रोसेस किया, आप कोई हो गया शॉर्ट लिस्ट, उसके सारे इंटरव्यूज़ हो गए, उसको ऑफ़र कर दी, डिस्कशन होगी, नेगोशिएशन होगी. कीप बोथ साइड्स अपडेटेड. 1 महीने का नोटिस है या 2 महीने का नोटिस है, दोनों साइड्स को कॉन्टीन्यूसली एंगेज्ड रखें. एम्प्लॉय जो टू बी एम्प्लॉय है उसके साथ भी कनेक्टेड रहें, ऑन एंड ऑफ उसको चेक करते रहें, उससे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए, उससे मैसेज पे हेलो हाई कर ली, आई होप एवरीथिंग इज़ गुड, वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव यू, आई वुड इनकरेज यू, तुम हमारे फेसबुक पेज पर जाके देखो, लेटेस्ट हमने ये किया है, यू वुड गेट टू नो मोर अबाउट आवर कल्चर. ठीक है. एंड इस साइड पे मैनेजर्स को अपडेट रखा. ठीक है, मेरी उससे बात हुई थी, दिस इज़ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यूएस को बताना है, वो बताएं, अपने सिस्टम में डालना है वेरी सिस्टमेटिकली. जिस दिन वो न्यू ज्वाइनर के लिए कंपनी वाइड न्यू ज्वाइनिंग की ईमेल चली गई हो पहले. अगर आपका साइज़ कंपनी का छोटा है एंड यू कैन मैनेज दिस, तो नोटिस बोर्ड पे उस शख्स की तस्वीर, नाम और डिपार्टमेंट लिखा हो. व्हेन ही और शी एंटर्स इनटू द ऑफिस, द फर्स्ट बोर्ड ही और शी लुक्स एट gives the impression that you are most welcome. Yes. And if your company size is good and you cannot do it for every single employee, so at least prepare the email. That's what I do for every single employee. I prepare the email in advance, writing the short summary of the person, प्रोफेशनल स्किल सेट क्या है, एक एक्सपीरियंस क्या है टोटल, साथ उसकी अच्छी सी पिक्चर जो हम पहले मंगवा चुके होते हैं, और वो कंपनी वाइड रोल आउट करते हैं, उसको सीसी करते हैं. अब उसने अभी सिस्टम उसको मिला है, उसने ओपन किया है और उसको वेलकम की 10 ईमेल्स आ चुकी हैं, एंड ही और शी इज़ ऑलरेडी फीलिंग वेलकम्ड. दैट्स द यूज़र एक्सपीरियंस. जो भी एडमिन से चीज़ें चाहिए, जो भी आईएएस से, आईटी से चीज़ें चाहिए, सिस्टम चाहिए, डिवाइस चाहिए, व्हाटएवर, आपकी एक रिसोर्स की जिम्मेदारी हो कि वो सब कुछ उसके आने से पहले अरेंज हो चुका है. उसको आके अब ये नहीं है कि तुम्हारा हनीमून पीरियड चल रहा है, दैट्स ओके, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो दैट्स नॉट प्रोफेशनल एचआर डज. ठीक है. सो ये मैंने आपको पूरा बता दिया. एंड देन हम जो क्विकली करते हैं, अ फ्यू इनिशिएटिव्स दैट आई हैव टेकन, जो कि जिसने बहुत वैल्यू ऐड की है, उसके साथ कनेक्टेड रहें थ्रू आउट द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ऑफ 6 months. और वो कैसे कनेक्टेड रहेंगे आप? 15 minutes chit chat of HR is one of the initiatives that we have. जब किसी का हाफ प्रोबेशन गुजर जाता है, हम उसके मैनेजर से फीडबैक लेते हैं, उसके साथ 15 minutes चिट चैट विद HR का एक सेशन रखते हैं, उसको बताते हैं तुम्हारा ये फीडबैक अब तक आ रहा है, तुम बताओ तुम्हारा पहला 1.5 महीना कैसा गुजरा, एनीथिंग यू आर फेसिंग एज चैलेंज हेयर, एनीथिंग वेयर आई कुड हेल्प यू, जो मैं मैनेजर को बताऊँ तुम्हारी भी ज़िंदगी आसान हो. देन फुल प्रोबेशन, सेम वे, फीडबैक एक्सचेंज फ्रॉम बोथ साइड्स. देन रोड मैप, पूरा एक रोड मैप तैयार पड़ा हुआ है. आईटी के लिए ये रोड मैप है, बीपीओ के लिए ये रोड मैप है, तुमने 15 दिन में, 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में, ये सब कुछ है. ये एक दफ़ा की एफर्ट है, फिर तो आपने इसको सिर्फ फॉलो ही करना ना, एवरी टाइम यू आर जस्ट फॉलोइंग दैट. सो ये ऑन बोर्डिंग और रिक्रूटमेंट का जो पूरा प्रोसेस है, it will help you a lot in retaining a good talent, give a very good word of mouth. जो आप ब्रांडिंग पे 5-5 लाख रुपए बाहर इन्वेस्ट करके अपने बाहर ब्रांडिंग करते हैं, उससे ज़्यादा आपके लिए आपके एम्प्लॉयज़ और न्यू ज्वाइनर्स बोलेंगे. और आजकल के जो यंग लोट है, वो आर वेरी एक्टिव एट सोशल मीडिया, दैट्स द बेस्ट ब्रांडिंग दे डू. आप उन्हें कहें कि अपने पहले दिन की पिक्चर लगा के 2 लाइनों का एक्सपीरियंस लिख के फेसबुक पे हमें टैग करें, लिंक्डइन पे हमें टैग करें. All of the people in his or her list will get to know what this company does, how he or she treats people, gives respect to people. Okay, so performance management approach के ऊपर most of the people mentioned कि performance management का जो session था यहाँ पे, वो आप mostly का miss हुआ था. So I'll be paying more attention to performance management. What is, by the way, performance management? So okay, so performance management system क्या है? Basically, define the goals और उनको achieve करना in the confined time. Okay, right. So it's a systematic approach of continuous improvement through
continuous process of feedback. We usually talk about one half of it, which is goal setting and KPIs defining. We usually do not talk about or pay attention to the other half of it, and that is feedback, continuous improving the process. Okay, so let's start with first step. This is a systematic approach of setting the goals and KPIs. This is one of the core responsibilities of HR as HR business partner, and that this will only happen if we connect the previous dots I talked about, if you know how that department works. अगर आपकी कंपनी में स्टिचिंग का यूनिट है, अगर आपकी फैक्ट्री में स्टिचिंग का यूनिट है और आपको नहीं पता कि स्टिचिंग करने के लिए बेसिक क्या क्या स्किल सेट चाहिए होता है, आप किस स्पेस पे उनके KPIs डिफाइन करेंगे? कि कोई बहुत मेहनती है, 9 to 6 काम करता है, एटीट्यूड अच्छा है, नो दिस विल नॉट वर्क. रिक्रूट ही नहीं कर सकेंगे. सो स्टिचिंग यूनिट पे जो सुपरवाइज़र बैठता है उसके स्किल सेट क्या हैं, क्या चीज़ एफिशिएंसी लाती है उसकी स्टिचिंग में, उसको कितना एक्सपीरियंस है, वो कितना मटेरियल का कम नुकसान करता है, कितनी वेस्टेज को बचाता है, कितनी लीकेज को बचाता है, उसको कितनी तरह की मशीन्स यूज़ करनी आती हैं. वेरी बेसिक एग्जांपल. उसको ये सब कुछ किस तरह से आता है और कितना एफिशिएंटली आता है, ओनली देन यू कैन डिफाइन KPIs कि व्हाट मेक्स अ परफेक्ट स्टिचिंग सुपरवाइज़र. सो जो भी आप कर रहे हैं, आप जिस डिपार्टमेंट के लिए KPIs बना रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 1 2 3 4 स्टेप्स क्या हैं. ओनली देन यू कैन डिफाइन द KPIs एंड नेवर एवर डिफाइन द KPIs in silo. Sit with the operational manager who is expert for that domain and discuss. Ask questions, understand if you have any doubts, that person is not expert enough and person is not giving you the ample information that you are looking for. Go and figure out someone of the same skill set in the market, take his or her time and understand. Get back to the operational manager that this is what my knowledge says and I'm just referring someone from outside. That could be your YouTube. That could be your self-learning. So do that, get back and tell him or her, this is what my understanding is, what do you say? That's how you are not developing only relationship with the person, you are understanding your business and you are also getting your impression set that I know my job. So don't say that you cannot be answerable to HR and I'm not bound to tell you the kind of statements we usually hear. You are bound to tell HR because HR, as a HR business partner, I know this is my domain. I need to set the KPIs with your help and you are going to do that. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके गोल्स KPIs कैसे डिफाइन होने हैं, वो कंपनी से कैसे अलाइंड हो रहे हैं. जो मैंने अभी आपको फाइनेंस की एग्जांपल दी थी, अगर आपके फाइनेंस को ये इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं कि इस क्वार्टर में आपने कॉस्ट कटिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, नई एक्विजिशंस नहीं करनी, तो आपके उस साल के गोल्स उस तरह ऑल्टर होंगे. डोंट कंफ्यूज इट विथ KPIs. आपके गोल्स उस तरह से ऑल्टर होंगे. अगर आपके गोल्स ऑल्टर नहीं होंगे तो आप तो उसी एक पाथ पे चले जा रहे हो, हर साल की स्ट्रेटजी के साथ उसको ऑल्टर ही नहीं कर रहे. तो दैट मीन्स, इसलिए मैंने उसको कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस कहा था. कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस का मतलब यही है कि एवरी ईयर योर गोल्स आर चेंजिंग बिकॉज योर कंपनी स्ट्रेटजी इज़ चेंजिंग एंड यू आर मेकिंग श्योर कि अब की स्ट्रेटजी 2023 की स्ट्रेटजी फोकस और इम्पोर्टेंस के लिहाज से मेरे KPIs और गोल्स सिस्टम में अपडेट हो गए. फर्स्ट स्टेप. जी प्लीज़. आपने स्मार्ट गोल्स पढ़ा हुआ है. सो बेसिकली अगर तो मेरे L3 टेक्निकल डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड सपोर्ट इन केस ऑफ एनी P1 bridge opens. P1 bridge opened, I would say it as priority matter. If any priority matters happen, I know that the SLA for that department to meet is 15 minutes. मेरा लाइव सर्विस डेस्क जो है वो बैठ गया है और मेरे पास SLA है उसको अप करने के लिए, लाइव करने के लिए 15 minutes. So that is my KPI related to SLA.
So that is inclined with my goals that are set for that organization, and particularly driven from the strategic goals. Those are defined by the top CEOs. Make sense? Okay, looks like I confused you further. Okay. Okay, so then, and that's what the big picture is. Now you're not talking about that KPI that defines HR recruitment. Now you know the big picture. ऊपर से टॉप से कोई चीज़ कैसे आई है, आपने स्ट्रेटजी कैसे बनाई है, स्ट्रेटजी का गोल कैसे बनाया, गोल में से एक्शन आइटम इन टर्म्स ऑफ KPIs कैसे निकाले, सिस्टम में डाले, मैनेजर से कोऑर्डिनेट किया, एम्प्लॉयज़ को जो कि उस साल के लिए उसको ओन करने लगे हैं उनको समझाया कि हाउ यू गोइंग टू डू इट. देन continuous feedback and reward system. Now HR's job is not done. Yeah, orthodox HR job is done until here. अब manager जाने, employee जाने, पूरे करें ना करें, this is not my headache. But if you are strategic HR business partner, if you have the integrated approach of HR, that means now for the entire year, that is your responsibility. Every quarter. So in our organization, regardless of the financial reward is tied up with that year, let's say April 1st. But the quarterly feedback system is there. So every quarter, manager, HR, and employee are sitting together for every single employee. Sitting together for 15 minutes, refining the goal, reviewing if any change needed according to the latest changes in the business. कोई ज़रूरत है चेंज करने की तो वो किया, उसको अपडेट किया, तुमने इसके मुताबिक अब अगले क्वार्टर में ये चीज़ इम्प्रूव करनी है. I'll provide you the training on behalf of HR and manager will do the XYZ stuff and you have to improve this. So every quarter all three parties are inclined and intact with each other, right? And now for the next quarter there is no surprise. अक्सर लोग इस चीज़ को ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि साल में इंक्रीमेंट तो एक दफ़ा लग रहा है, तो क्या हम क्वार्टरली इंक्रीमेंट्स प्रोसेस कर लें या बाय एनुअल कर लें. Whatever suits your organization, do that with the consent of your finance manager and CEO and operational manager. But in our organization, regardless that is annual increment, quarterly review process is there, which happens first week of every quarter to be completed by the month of that quarter. And that is perfect system in place. Why? Because there is no surprise at the end of the times. There is no bullshit that, pardon my words, that HR needs to deal with from HR employee or manager side, because everybody is already aware where he or she stands. Daily basis पे हो सकता है? Depending on the size of your organization. 5-10 बंदों की ऑर्गेनाइजेशन है, 15 की है, 50 की नहीं, 50 की भी नहीं हो सकता, बट डिपेंडिंग ऑन द साइज. Okay, so this is very, very, very important aspect, this last part. Why so? Because जो respective immediate supervisor या manager है, वो ही employee को evaluate कर रहा है. Yes. और उसकी personal ethical values कि वो liking disliking को तो नहीं कर रहा. Exactly. So it's very, very important that how that manager capabilities are. Does he or she know that how to give feedback? How to be empathetic? How to be a solution provider? Somebody takes responsibility that I am leading a human. I'm responsible for his or her growth. Does somebody understand that? So ये बहुत important है, क्योंकि हम समझते हैं कि मैनेजर को तो हायर CEO ने किया है, दैट इज़ बियॉन्ड माई कंट्रोल, मैंने तो बस इसको रिसोर्सेज देने हैं. आपका अच्छे से अच्छा रिसोर्स कंपनी में नहीं टिकेगा अगर आपके मैनेजर में मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज़ और लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं, एंड दैट्स HR's रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप दैट. बिकॉज आपके 15 लोग सिर्फ 50 लोग और 100 लोग उस एक शख्स से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. सो आपकी एफर्ट्स बेकार चली जाएंगी इफ़ दैट वन पर्सन इज़ नॉट a mature one, not having all the capabilities that that person should be having.
सो फीडबैक कैसे देना है, बात कैसे करनी है, कोई ट्रिकी सिचुएशन को कैसे डील करना है. लेट्स से आई रिपोर्ट टू यू एंड आई गॉट कोविड and you need to get the things done and I call you और मैं आपको कहती हूँ मुझे कोविड हो गया है, I cannot come forward for at least week or so. आपके अपने टारगेट्स हैं, आपने accomplish करने हैं. So how if he is in that frame of mind of typical operational manager और वो कहता है कि मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी करो, you are being paid for this, तो मैं उस टाइम तो कर दूँगी but I'll leave the organization very soon, क्योंकि दैट इज़ अ सेंसिटिव सिचुएशन फॉर मी. ठीक है. अक्सर ये इन मौक़ों पे आपने स्टेटमेंट सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि कंपनी ने हमें ख़रीद तो नहीं लिया, क्योंकि वो रिसोर्स बहुत डिसहार्ट हो चुका होता है. कुछ स्पेसिफिक ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको बिजनेस से बाहर सोचना पड़ेगा. अगर आपने एक दफ़ा ह्यूमन सेंसिटिविटी को, उसके थ्रेशोल्ड को टच कर दिया, लॉयल्टी इज़ गॉन आउट ऑफ द डोर. फिर आपके इतने हैंडसम पैकेज का, इतना सारा कुछ पर्क्स देने का, इतनी इन्वेस्टमेंट ब्रांडिंग पे करने का कोई फ़ायदा नहीं इफ़ योर मैनेजर, वन ऑफ योर मैनेजर्स कुडंट मैनेज द सेंसिटिव सिचुएशंस. ठीक है. सो इतना क्रिटिकल है ये कि आपका मैनेजर कितना कैपेबल है. आपके वो 100 बंदे के ऊपर जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या उसको फीडबैक देना आता है, उसको बात करनी आती है, उसको सिचुएशन डीलिंग आती है, क्या उसको कोचिंग की ज़रूरत तो नहीं है? और उसको आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? लेट्स से यू आर अ यंग लेडी फॉर HR and somebody with 20 years of experience running a BPO department. You go to the person and you are trying to coach the person. वो कहेगा मैं आपसे क्यों सीखूं, मुझे आपसे 2 decades ज़्यादा पता है इंडस्ट्री का. तो आप कैसे कोच करेंगे उसको? Anyone? आपने मुझे सिखाया, मैं आपसे सीखना चाहूँगा. फिर तो वो आपसे, फिर आपको सिखाएगा ना ऐसा. सिखाएगा नहीं, घुमाएगा. तो फिर आपने लेनी है सिस्टमैटिक अप्रोच. यू डोंट हैव टू गेट पर्सनल. आपने लेनी है सिस्टमैटिक अप्रोच. उसके KPIs डिफाइन करें, उसके गोल्स क्या हैं. जब उसके गोल्स, उसके KPIs, जिसका ये हिस्सा है दैट हाउ टू रिटेन योर टैलेंट एंड टू विच परसेंटेज ऑफ द टैलेंट शुड बी विद यू द नेक्स्ट ईयर, एंड व्हेन somebody is leaving, you are doing exit interview, getting the data, making your analysis, sharing with CEO कि ये बंदा है जिसके 10 बंदे छोड़ के गए हैं और ये फीडबैक आ रहा है, उसके KPIs में डालें, तो आपको कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा. Now system would influence him or her, and that is your system, that is in your control, and that will only happen if you connect all the dots again, if you know the business, if you know how to do it. Getting any sense out of it? Okay. Performance management पे कोई question quickly? All that clear. Okay. Now learning and development. What is learning and development? Very quickly. Process बताए कोई A to Z जल्दी से. क्या करते हैं? एरिया डिफाइन किया जाता है मैम इसमें कि कहाँ पे ट्रेनिंग्स की ज़्यादा ज़रूरत है, लर्निंग किधर है, डेवलपमेंट किधर करनी है, और फिर जो लाइन मैनेजर है या डिपार्टमेंट हेड है उसकी आप कह लें जो अप्रोच है उसको साथ लेकर फिर वो डेवलपमेंट्स प्रोग्राम्स, आपकी ट्रेनिंग्स, वो चीज़ें कंडक्ट कराई जाती हैं कि किस किस पॉइंट पे कौन कौन सी ट्रेनिंग जो रिक्वायर है. Okay. एज पर डिमांड. Okay. Perfect. फीडबैक और एम्प्लॉयर फीडबैक, ठीक है. उन दोनों को कंबाइन करके फिर आपको आप एक डिफरेंट उसमें से सॉल्यूशन निकालते हैं कि हमें कहाँ पे लैग कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स में लैग कर रहे हैं या एथिकल सॉफ्ट स्किल्स में लैग कर रहे हैं, तो फिर उसी के रिगार्डिंग आपकी ट्रेनिंग्स. ठीक है. It starts with the TN. Yes. Okay. Analysis, assessment. मार्केट के ट्रेंड्स और इंटरनल जो आपकी ओवरऑल चल रही है ग्रोथ, उसको देखते हुए कहाँ पे लर्निंग की जरूरत है, कौन से स्किल सेट है जो हम होने चाहिए. इसका यूजली ना प्रोसेस इस तरह से होता है कि आई सेंड अ फॉर्म टू लेट्स से आवर IT head, and she's my IT head. I'm sending the form to her to fill it out for the entire group, and she is doing that in silo. यहीं से सारा प्रोसेस ख़राब हो गया आपका.
सो बेसिकली यू हैव टू डिफाइन अ प्रोसेस जहाँ पे आपने एनालिसिस के लिए, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले आपके पास खुद के पास पिछली एवैल्यूएशन होनी चाहिए उस इंडिविजुअल की। उसकी एवैल्यूएशन पे क्या लिखा हुआ था, व्हाट ही और शी हैड टू इम्प्रूव। ठीक है, वो डाला फॉर्म में, वो मैनेजर को भेजा, मैनेजर को इनकरेज किया कि रिसोर्स से बात करे, उसको किस चीज़ में इम्प्रूव करना है, उसको क्या लगता है, उसके सुपरवाइज़र को क्या लगता है, वो इज़ डायरेक्टली डीलिंग विद द पर्सन। एंड देन फिर आपको क्या लगता है कि डिपार्टमेंट के गोल्स के लिहाज से इसके अंदर ये स्किल्स है, टेक्निकल या सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव होनी चाहिए। फिर वो एचआर के पास आया, एचआर ने अपना पूरा कैलेंडर बनाया, उसके मुताबिक इंटरनली और एक्सटर्नल ट्रेनर्स हायर किए। इंटरनल ट्रेनर्स का बाय द वे बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप अपने इंटरनली लोगों को इंकरेज करें who are good at training or educating people, developing people, because most of the people are teaching somewhere outside, so they have the teaching skills, and you reward them a small amount. ठीक है, लेट्स से कि आपको एक ट्रेनिंग कम्युनिकेशन के ऊपर, एक स्पेसिफिक लीडरशिप के ऊपर आपने ट्रेनिंग करनी थी, somebody who is excellent leader with good communication, with good teaching style and influential personality. आपने उस कम्युनिकेशन प्रोग्राम के लिए 2-2.5 लाख रुपया बाहर देना था एक क्लास कराने के लिए, उस वही 50,000 अपने रिसोर्स को दें एंड गेट इट डन। ना सिर्फ आपने इंटरनली एम्प्लॉय को विन किया, आपने अपना बजट सेव किया। ही नोज बेटर देन हाउ टू इन्फ्लुएंस दिस ग्रुप देन समवन हु इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, आपने ट्रेनिंग्स एग्जीक्यूट करवाई, ट्रेनिंग फीडबैक लिया, कंटेंट भी इम्प्रूव करने का फीडबैक लिया और एम्प्लॉय की तरफ से भी फीडबैक लिया कि कैसा लगा आपको। फिर उसके महीने के बाद मैनेजर से फीडबैक लिया टू कैलकुलेट योर ROI, और फिर उसके 3 महीने के बाद इफेक्टिवनेस फॉर्म लिया, फिल करवाया मैनेजर से कि मैंने जो चीज़ सिखाई है उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, उसमें सर्टन क्वेश्चंस होते हैं जिसके अगेंस्ट वो रेटिंग देता है 3 to 1 कि अच्छा किस चीज़ का एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में फ़ायदा हुआ है कि नहीं। ये है जनरल प्रोसेस। अब इसके अंदर जो सबसे मज़े की चीज़ है, विच आई एक्सपीरियंस नॉट वंस ट्वाइस इन माई करियर, आई क्विकली शेयर दोज एग्जाम्पल्स एंड दैट विल ओपन योर ईयर दैट हाउ यू नीड टू थिंक व्हेन यू डूइंग असेसमेंट एट द वेरी फर्स्ट स्टेप। माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, आई वॉज आस्क्ड दैट सिस्टम एनालिस्ट्स आर नॉट डूइंग गुड, they are unable to gather requirements, they are unable to express the requirements to business clients, and they are giving us the tough time, replace the person. I replaced the person. Somebody was extremely competent, I couldn't understand how it is happening. Interview में तो सब उसने ठीक बताया था. Okay, again another person is hired, same complaint or same nature of complaints. Then I sat with the group to understand what is actually happening, and I figured out they have lack of documentation of required documentation to understand business and to discuss the relevant information with the client. They don't have the relevant documentation available that could help anyone at the first place to come join the group and understand what are the basic requirement of that application, how to use that application, and how to talk to clients about its new phases or different versions. Basic documentation नहीं थी, and every time it was coming as a complaint कि system analyst नहीं कर पा रहा, तो system analyst को documentation की ज़रूरत थी initial to understand that specific application. वो नहीं थी। जब वो क्लाइंट के सामने जाता था उसको पता ही नहीं होता था कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। वो अपनी स्ट्रगल पे ही सर्च कर रहा था और 3 महीने उसको स्ट्रगल में लग जाते थे। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, आई वॉज आस्क्ड दैट कस्टमर सर्विसेज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दे आर वेरी स्लो। क्लाइंट गेट्स अपसेट, क्लाइंट गेट्स फ्रस्ट्रेटेड एंड दे आर नॉट मेकिंग श्योर इसका SLA नहीं अप्रूव हो, इसका SLA जो है ना वो मीट नहीं हो रहा, या इसको दूसरे टर्म्स में कहें कि इसका KPI नहीं मीट हो रहा, क्योंकि एवरी टाइम क्लाइंट फ्रस्ट्रेटेड होकर चला जाता है और ये उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता। Again, when I explored, when I was at the start of my career, I think it was a time when I really learned that how to do the assessment. So I sat with the group and I realized कि आपने मुझे कॉल किया अपनी किसी प्रोडक्ट के लिए, I am the customer representative. The system I'm using, the database I'm using is so slow. This system has performance issues.
इन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे कह रहे हैं ये मुझे इन्फॉर्मेशन बता दें, हम जस्ट सर्चिंग और वो स्टक हो गया है सिस्टम और परफॉर्मेंस इश्यूज़ हैं। मैं उन्हें कह रही हूँ प्लीज़ बेयर विद मी, प्लीज़ होल्ड ऑन, आई एम जस्ट गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन, और वो क्लाइंट अपसेट हो गया। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का इशू नहीं है, आपका सिस्टम स्लो है, द एप्लीकेशन यू आर यूजिंग इज़ आउटडेटेड। तो आप उसको जितनी मर्जी इंग्लिश की क्लासेस दे देंगे, उसको जितना मर्जी सिखा लेंगे, क्लाइंट कंफर्ट सिखा लेंगे, उसको एंगर मैनेजमेंट सिखा लेंगे, इट विल नॉट हेल्प अंटिल योर एप्लीकेशन इज़ फिक्स्ड। तो इसका मतलब लाजमी नहीं है कि जो TNA आपके पास आ रहा है वो एक्चुअली इशू वही है। यू नीड टू फिगर आउट कि आपका एक्चुअल इशू क्या है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ओके, so the next very important please मैम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट दोनों अभी डेफिनेशंस हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। learning and development is the latest name for the training and development because now Learning is the new name? yes, learning is the new name. Training and development we use for the blue collars. It's same, Same. it's just a new trendy fishy name, Okay. hot name, that's it. So training and development is like you are teaching people and you are really, you know, in a class model you are teaching people. Learning is you are two-way learning. You are teaching people, you are learning from them. You are becoming a facilitator than a trainer. So it's just a fancy new name. No change in practices. Okay, so what is the next very important part or function of HR is organizational development and culture. You pay attention to culture or not, it exists. Agreed? Regardless you pay attention to it or not, you have a certain culture that exists, that people are living in, that people are talking about, that external world is perceiving you that way. So why not focus on that? अगर एक चीज़ है ही already, तो why not to focus on that? So culture is basically the way external world know you as an organization, and the employees you are dealing with treat you or perceive you as an organization. That's the culture. Kind of values you have, not the ones who are written on the walls, the actual values you have as management team, as leadership team, as HR head, as finance head, the values you have, the behaviors you depict in day-to-day tasks, how you treat people, how you deal with people, that is your culture. Right? So if we talk about, so anything which defines your commitment to your value is basically culture. And again, do not get confused with the values written on the walls. अगर आपके वॉल के ऊपर लिखा है कि one of your core values for the company is team building, and in your day to day you are not encouraging all the practices around team building, आप जूनियर सीनियर का कल्चर लेके आ रहे हैं, आप बॉसी कल्चर लेके आ रहे हैं, तो आप अपनी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं दीवार पे लिखी वैल्यू के साथ. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके जो बिहेवियर्स हैं एवरी डे, एंड इट स्टार्ट्स विद HR, इट स्टार्ट्स विद CEO, वो आपके अगर इन लाइन हैं तो ही आप यू आर ट्रूली रिफ्लेक्टिंग ऑन योर कल्चर. डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड इंक्लूसिवनेस के अराउंड आपकी क्या प्रैक्टिस है. Let's say you're one of the core values and your culture says that you are a culture of integrity. You are a fair culture. आप कहते हैं कि जी हम तो लोगों को fairly treat करते हैं, ठीक है. But when you are talking about dealing with diversity, I hope you understand diversity, right? So diversity, different group of people with different school of thoughts and ideology. So मैं वैसे तो कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी की बात कर रही हूँ, बट व्हेन आई नीड टू डील विद दीज टू जेंटलमैन हु आर टोटली डिफरेंट विद ईच अदर, वन इज़ अकॉर्डिंग टू माई स्कूल ऑफ थॉट्स, सो आई एम परफेक्टली ओके विद देम. वन इज़ बिट डिफरेंट, चैलेंजेस मी एवरी टाइम and gives me tough time, ask me different questions, put me on spot, I have some personality clash with him. So इनके लिए मेरी practices different है. ये पूछने आएंगे ये रिलैक्सेशन मिल जाएगी तो मैं कहूँगी बिल्कुल मिल जाएगी, ये पूछने आएंगे तो मैं पॉलिसी दिखा दूँगी. So that's how I'm going against my values.
और जो मैंने आपको कहा था, इफ़ योर एथिकल वैल्यूज़ आर दिस वे, पीपल गेट इट, कैच इट वेरी क्विकली. दैन डजेंट मैटर फिर आपकी फैंसी ब्रांडिंग स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं. The very good initiative that you can run is run value-driven campaign at your organization. On behalf of HR, you should know your values. Every month in your town halls, अगर आप town halls करते हैं या employee meetings करते हैं every month, so you can run value-driven campaigns. So value-driven campaign में let's say आपने एक value पकड़ी team work की, आपकी कंपनी की वैल्यू है टीम वर्क, आपने वो ली, उसके बिहेवियर्स निकालें, किस किस तरह के बिहेवियर्स को आप टीम वर्क में इनकरेज करते हैं. एक बंदा दूसरे को सपोर्ट करता आउट ऑफ वे जाके, एक बीमार हो गया तो दूसरा उसके लिए एक्स्ट्रा कवरेज दे रहा है, क्रेडिट एक को नहीं मिल रहा, टीम को मिल रहा है फॉर द वर्क, मैनेजर इज़ नॉट स्टीलिंग द क्रेडिट. आप एम्प्लॉई मीटिंग में, टाउन हॉल्स में उस चीज़ को इनकरेज करें, एक टीम की एग्जाम्पल लेके आएँ, एज एन HR रन करें उस कैंपेन को. उस मंथ में टीम वर्क के ऊपर बात करें, एक टीम जो बहुत अच्छी टीम वर्क में काम कर रही है उसको स्टेज पे लेके आएँ, लोगों को दिखाएं दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टीम वर्क. इफ़ यू फील यू आर द सेम टीम, वी वुड एनकरेज यू नेक्स्ट टाइम. जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मकसद है आपका वो भी पूरा हो गया. यू आर रियली टीचिंग पीपल हाउ टू बिहेव अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज़, राइट. And build a fair reward system, which I told you. Do not keep your eyes closed on the people who are going against your values. Your system should be fair and very well written, that if you will be going against the value or this certain behavior which is not acceptable, this is the action item that we have that we can take against you regardless of your level. Orientation में लोगों को बताएं कि हमारे यहाँ ये बिहेवियर्स इनकरेज किए जाते हैं, ये बिहेवियर्स इनकरेज नहीं किए जाते. सो आर कल्चर इज़ विदाउट एनी hierarchies, विदाउट एनी बाउंड्रीज. वी से दैट वी आर ओपन डोर पॉलिसी एंड ऑल. देन व्हेन यू आर एक्चुअली सेइंग इट, और डाउन द रोड जाके कोई बॉसी किस्म का मैनेजर आपने हायर कर लिया है, बॉसी किस्म का लीडर आपने हायर कर लिया है, सो टेल दैट पर्सन टू चेंज हिज और हर एटीट्यूड. Somebody might be working with some organization previously, might have told this attitude. That's okay. Don't take it too personal कि अच्छा जी उसका boss attitude क्यों है. Just try to influence the person. कि now you are in different culture, यहाँ पे bossy attitude नहीं चलेगा, please change your attitude. If that does not get fixed, according to your systematic disciplinary action process, जो कि आपका होना चाहिए, which says that पहली दफ़ा verbal बात की जाए, दूसरी दफ़ा writing में बात की जाए, keeping the HR and manager in CC. CEO अगर बहुत हाई लेवल का कोई बंदा है तो FII कर दिया जाए CEO को, राइट. एंड देन एट द फाइनल स्टेप you should be knowing the final step, and someone should be knowing the final step. Only then you can fix your culture. अगर आप किसी मैनेजर के उसी कल्चर पे आंखें बंद कर लेंगे, उसी बिहेवियर पे, और वही अगर लेवल 1 का रिसोर्स करेगा तो आप उसको टर्मिनेट कर देंगे. You are spoiling your culture yourself. Stop gossiping people at the end. Okay, then we have wellness approach. Another very important function of HR, and that is wellness. Companies are paying a good attention to wellness programs. This is about well-being of employee. If you are working at the level of strategic HR or integrated HR, as I shared with you previously, that means you should know that how the wellness programs are run in the organization. Again, do not do that in silo. Bring your CEO in confidence, sell him or her the first, how it is going to benefit the organization, because this is one of the latest trends. और अगर wellness के बारे में मैं आपको quickly बताऊं that what does this mean, how people feel at work in general, how they balance their work life. So flexible hours जैसे हमने डिस्कस किए थे, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, हाउ टू गिव सपोर्ट ड्यूरिंग देयर टफ टाइम्स, उनकी पर्सनल हेल्थ है या उनकी फैमिली सिचुएशन है, समथिंग बैड हैपन टू देम. So this is all comes under wellness program, how you are emotionally dealing with your associate beyond business terminologies.
And if you need some tips around or takeaways around this, so you can take initiative around arranging awareness sessions, yoga session. You can have the people walk around the office. You can set up a time कि इस हफ्ते में हम इस दिन walk किया करेंगे. पूरे कंपनी में अलार्म बजा दिया, रिमाइंडर लगा दिया सबको कि ये 15 मिनट, take everyone, get yourself off from the seat and let's go for a walk or something. So these kind of small initiatives really help you to build your relationship, professional relationship with your people, and they see as you're concerned, you are genuinely concerned about themselves. Keep sending them the tips on staying healthy. Get yourself up from the seat after every half an hour. Roam around for 2 to 3 minutes. So be that kind of HR who care for people, not the one who makes sure that somebody is coming at 9 and leaving at 5. And इसको ज़रा गौर से पढ़ लें. Communicate they and their families as the topmost priority for the company, and then mean it. In every single aspect of your practices, mean it. ये नहीं कंपनी की प्रायोरिटी आ गई थी, वहाँ से यूएस से लीडरशिप टीम आ गई थी एंड यहाँ से बंदा बीमार हो गया तो हमें कहा वी डोंट केयर अबाउट योर चाइल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम बिकॉज दिस इज क्रिटिकल टाइम. देन मीन इट दैट यू एंड योर फैमिली कम्स फर्स्ट. एंड it is said it's hard to be strategic if you cannot be. अगर आप एफिशिएंट नहीं हैं अपनी प्रैक्टिसेस में तो आप स्ट्रेटेजिक नहीं हैं. एफिशिएंट का क्या मतलब है, हम क्विकली देख लेते हैं. ये सारी एप्लीकेशंस हैं दैट ब्रिंग्स ऑटोमेशन टू योर सिस्टम, योर प्रोसेस. सो अगर आप आज भी उसी प्रोसेस के तहत काम कर रहे हैं जहाँ पे एवरीथिंग इज़ मैनुअल, ट्रस्ट मी इट्स वेरी इजी टू ब्रिंग ऑटोमेशन टू योर प्रोसेस. It's just about bringing efficiency. देखें कि कौन सी चीज़ पे मेरा ऑर्थोडॉक्स टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैनुअल एफर्ट्स पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, रिप्लेस इट विद ऑटोमेटेड अप्रोच. ठीक है. ऑटोमेटेड अप्रोच के लिए यू कैन ब्रिंग सो मेनी सिस्टम्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन. यू कैन गेट दो सिस्टम्स डेवलप्ड बाय योर इंटरनल टीम. लाजमी नहीं है कि आपने बाहर से फैंसी एक्सपेंसिव सिस्टम लेके आने हैं. डिपेंडिंग ऑन द बजट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आप अपनी डेवलपमेंट के आप अच्छे 2 इंटर्न्स हायर करके अपने एक एप्लीकेशन बनवा सकते हैं जिसको आप सिर्फ स्टाइपेंड पे कर रहे हैं. बट यू शुड बी वेरी मच स्पेसिफिक वर्किंग विद दैट ऑपरेशनल हेड. अगर आपने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है और आप समझ रहे हैं कि अभी जो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर बहुत मेरी मैनुअल एफर्ट्स लग रही हैं, सिट विद IT मैनेजर, अंडरस्टैंड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस तरह का बंदा चाहिए, हायर द पर्सन विद द हेल्प ऑफ IT मैनेजर एंड आस्क हिम टू लीड. और हर 2 महीने बाद विल बी ओके विद द अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम. सो देयर आर सो मैनी अप्रोचेस. इट्स नॉट द एक्सपेंसिव वन ओनली कि आपने कोई बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त था जैज़ का या वर्कडे का या कोको कोला का सिस्टम लेके आना है. आप अपने डेवलपर से इवन इंटर्न्स हायर करके भी करवा सकते हैं, बट इट विल ओनली हैपन इफ़ यू नो हाउ टू गेट इट डन. This is about compensation and benefit. Again, another very important function of HR. Compensation survey हर साल करें. Do not try to go by the same manual approach कि अच्छा जी इस दफ़ा अगर 5% इंक्रीमेंट लगाया तो सबका 5% छापा एंड दैट्स इट. नो. अगर आपका रेटिंग बेस्ड सिस्टम है जो कि आपके गोल से अलाइंड है और वो आपको बता रहा है कि इस तरह रेटिंग के अकॉर्डिंगली करें तो लोगों को उनके लेवल के हिसाब से रेट करें. अगर आप लेवल A को भी 5% दे रहे हैं और लेवल C को भी, और आप एक्सपेक्ट करेंगे वो आपस में बात नहीं करेंगे, वो करेंगे और जो A है वो भी अगले साल C हो जाएगा. जो फेयर रिवॉर्ड सिस्टम है वो लोगों को उनकी एटीट्यूड के हिसाब से, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिहाज से दें. ब्रिंग द सिस्टम जो दैट कैन क्लियरली टेल यू कि आपने 3, 2, 1 किस तरह रखा हुआ है. और अगेन आई एम रीआइट्रेटिंग, हर साल सैलरी सर्वे अपनी इंडस्ट्री का ज़रूर करें, रिगार्डलेस यू आर गेटिंग इट फ्रॉम डिफरेंट ऑथराइज्ड सर्वे इंस्पेक्टर्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव गुड कनेक्शन विद योर कंपेटिटर्स HR. यू कॉल देम एंड आस्क देम व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इस पोजीशन को कितना पे कर रहे हैं, कितना % इंक्रीमेंट इस दफ़ा दे रहे हैं, दिस एंड दैट. सो व्हेन यू गो फॉर द इंक्रीमेंट प्रोसेस एंड योर CEO सेज के सबको 5% दे दो, तो आपके पास डाटा हो, आप बता सको कि हमारे कंपेटिटर्स 5% दे रहे हैं, इसको
A क्लास को 10% दे रहे हैं. So if you want to retain your A class and don't want them to go to this competitor, please pay attention to that. Okay, so this is really the summary, and before that, I would like to discuss few takeaways with you. Understand your current business priorities, know your current business trends, know your current business global effectiveness. So first takeaway is, do not do that you had been doing with previous organization, with previous industry, but do something according to your current organization. That will set the tone that you are an agile HR. You know how to add value. Then we talked about do not do something for the sake of doing. आपको मैनेजर ने कहा ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कर लो, आपको मैनेजर ने कहा इस बंदे की अटेंडेंस काट लो, आपको ट्रेनिंग मैनेजर किसी भी ऑपरेशनल मैनेजर ने कहा कि इसका इतना रेस लगा दो, इसको आउट ऑफ वे बोनस दे दो. यू शुड बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस in an influential way, not that because you are HR and you can ask. Develop that relationship with the person that you can ask question. क्यों देना? What value he or she is adding in comparison to this. Once you know your business, once you know the department is doing, only then you can ask questions. And then bring efficiency according to that questions. My professional advice to all of you is keep improving your professional profile. Keep improving your professional profile. Every 6 months, set a target for you कि मैंने इस 6 महीने में के बाद क्या अचीव करना है. कौन सा लेटेस्ट ट्रेंड है जो मुझे नहीं पता, मुझे आ जाना चाहिए. मैंने एक्स मेंटोर को अप्रोच करना है, उससे मैंने 15 मिनट में, 1 घंटे में, महीने में 2 चक्कर लगा के अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके क्या सीखना है. अगर लेटेस्ट है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की ट्रेनिंग करना, तो क्या आई नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, फ्रॉम वेयर आई नीड टू डू इट. उसके लिए कोई पैसे मैंने इन्वेस्टमेंट साइड पे करनी है. Anything which is highlighted as lacking point from my manager, as communication, as emotional intelligence, do I need to invest on that? अब तो YouTube पे, LinkedIn पे बहुत मटीरियल पड़ा हुआ है in terms of learning. You don't even need a specific institute for that. Then I shared, don't be judgmental at all. As an HR, you cannot be judgmental. You cannot take things personal. This is not expected from you. You have to show maturity. You deal with people as a neutral person, and then you need to conclude according to by critically thinking all aspects of business. ये नहीं कि जो जिसने बताया आपने वो execute कर लिया या बात मान ली. Okay, always work on your backups. That's what your CEO expects from you. अपने की प्लेयर्स का आपको हर वक्त पता होना चाहिए. मेरे लीडरशिप में ये 2 की प्लेयर्स हैं, मेरे हर डिपार्टमेंट ये 5-5 की प्लेयर्स हैं. इनके बैकअप्स हमेशा होने चाहिए आपके पास, ताकि कभी आपके CEO को पसीना ना आ जाए या सुन के कि अच्छा मेरा फलां बंदा जा रहा है. यू कैन ऑलवेज स्टेप अप एंड यू कैन टेल हिम और हर कि मैंने मार्केट में इतने कनेक्शंस बनाए हुए हैं, डोंट वरी. हम रिटेन करने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं रिटेन हुआ, आई विल गिव यू गुड रिप्लेसमेंट.